السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے خیریت سے حضرت، کیا حال خبر ہے، سنائیے۔ اب کچھ حالات آپ بتا دیں تو چینل پہ ڈلوا دیں گے۔ کیا حالات تو کیا بتایا جائے، ٹھیک ٹھاک ہے، بس آپ اپنا سنائیے۔ بس کرم اللہ کا سب ٹھیک چل رہا ہے۔ میرا تو پیغام یہی رہتا ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں بن رہا ہے، اسی سے سچے مسلمان بنو۔ وہی پکے سچے۔ ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ بمبئی کے جو کیا ان کا نام ہے، کلیم حنفی صاحب، جو آپس میں جو ہے جو تنازع کھڑا کیا ہے، تو وہ تو چیلنج بازی وغیرہ سب ساری باتیں چل رہی ہے نا۔ ارے یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ ہاں آپس میں جب یہ آپس میں ان کے تنازع ہوں گے نا، جی جی تو ان کے خود ہی پول پٹے سب کے سامنے آئیں گے، ایک دوسرے کے خود پولے کھولیں گے۔ جی جی کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں پھر ان کے اندر بھی۔ ابھی انہوں نے بتایا جی جی مفتی حشمت علی صاحب دیوبندی سے پڑھے تھے۔ وہ جی 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 عجیب و غریب بات ہے۔ اب مشکوک تو کر ہی دیا کہ دیوبندی سے پڑھیں گے تو کچھ تو اثر رہے گا دیوبندیت کا۔ جی 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 بھلے ہی وہ کٹا بریلوی ہو گئے بعد میں، لیکن دیوبندیت کا اثر تو رہے گا ہی رہے گا۔ جی 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 بالکل۔ کل شین یرجع الی اصلی، ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف، اصل کے جانب۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ وہ بھلا ہی وہ کتنی کٹر ہو گئے تھے، پیسہ کمانے کے لیے آدمی بہت سی باتیں اختیار کرتا ہے۔ جی 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 ابھی بھی آپ کے حیدرآباد کا نقش بندی ہے، نقشہ بندی دیکھیے ویسے گمراہیت پھیلا رہا ہے وہ۔ لیکن وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اندر سے دیوبندی ہے وہ، اندر سے دیوبندی ہے نا۔ پکا دیکھیے دیوبندی ہے، کٹر۔ یہ کٹر ہیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ یہ جو مسلک اہل سنت والجماعت علماء احناف دیوبند، یہ بالکل اعتدال پر مبنی یہ مسلک ہے، بالکل اس میں حضرت، اعتدال ہے۔ بالکل حضرت، بالکل اعتدال ہے۔ اور دیکھیے یہ محترم، یہ دیکھیے کہ یہ تحریک یہ دیوبند ہے نا، جی جی اس تحریک بر صغیر میں بہت ساری تحریکیں چلی، لیکن یہ تحریک بالکل اپنے اغراض مقاصد میں کامیاب ہیں۔ یہ نہیں، ان کے سب سے بڑی بات تو ہے کہ دیوبند والوں کے جو دارالعلوم ہے وہ اتنی تعداد میں ہے کہ گننا مشکل ہے، گننا مشکل۔ ارے دیکھیے تبلیغی جماعت اسی تحریک کا ایک حصہ، 20 کروڑ اس کے یونٹ ہیں۔ 20 کروڑ ہے نا، 20 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا، پورے آل ورلڈ میں۔ دیکھیے آپ دنیا کے کسی بھی ممالک میں پہنچیں گے تو بھائی وہاں پر تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، ہاں اور ان بالکل کی ایک آواز پر لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ سب دیوبند کے علماء کی دین ہے۔ تو وہ جو مولانا الیاس صاحب جو تھے نا، بانی جو ہے تبلیغ شیخ الہند حضرت کے مولانا بڑے، الیاس صاحب کی جو قربانیاں تھیں ہاں ہاں وہ بعد میں عروج پکڑی۔ ہاں ہاں ہاں، تو ان کی خلوص اور للہیت کا اثر تھا، اور وہ تو شیخ الہند کے شاگرد تھے نا۔ مفتی محمود صاحب کے، ہاں مطلب مفتی مولانا محمود الحسن دیوبندی، انہی کو شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ ان کے شاگرد ایک علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ نہیں، ان کے شاگردوں میں علامہ کشمیری ہیں، مفتی کفایت اللہ، جنہوں نے جمعیت کی بنیاد ڈالی تھی، شیخ الہند کے سرپرستی میں۔ شیخ الہند کے تو شاگرد بہت بلند تو والا ہے۔ تو شیخ الہند اصل مولانا قاسم صاحب ہی کے شاگرد تھے۔ اب بتاؤ، قاسم نادری صاحب کے یہ پہلے شاگرد تھے، جی جی، اور کتنی بڑی تعداد بنا دی پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کی۔ ارے کل قیامت کے دن یہ جو قاسم صاحب کا جو ان کے پیچھے جو جماعت ہوگی، جو قافلہ ہوگا، اتنی بڑی جماعت میرے خیال سے بر صغیر میں کسی کے پیچھے اتنی بڑی جماعت نہیں ہوگی۔ اب یہ اندازہ لگاؤ، شیخ الہند کے شاگرد بے شمار، بہت بڑی تعداد ہے۔ حضرت شیخ العرب والعجم شیخ حسین احمد مدنی صاحب کے شاگرد ایک سے ایک شاگرد ہوئے۔ جی جی، شیخ وہ مفسر قرآن جنہوں نے 8 بار قرآن کی تفسیر سنائی، مولانا صفدر اکاڑوی صاحب، ماشاء اللہ، قرآن کی 8 بار تفسیر سنائی۔ ارے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، وہ تو شارح بخاری ہیں، تسہیل الباری فی شرح بخاری 22 جلدوں میں۔ اب بتاؤ، ان کے 22 جلدوں میں، 22 جلدوں میں، اور یہ تسہیل البخاری فی تسہیل البخاری فی، مطلب اس طرح ہے، تسہیل الساری فی شرح بخاری، یعنی 22 جلدوں میں، 22 جلدوں میں ہے غالباً، اور 50 سال تو انہوں نے جو ہے بخاری پڑھائی ہے۔ تو جو ہے بخاری کے درمیان جو ہے وہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ مطلب محبت میں اور جو ہے ایک وجدانی کیفیت میں کہ بلا عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، بخار تو آتا ہے اس کو بخاری نہیں آتی۔ اتنے یہ اب کہتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جمعیت جو ہے نا،
जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शेख उल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी उसके बानी थे, जो फतहुल मुल्हिम के शारह मुस्लिम हैं। फतहुल मुल्हिम उससे शारह मुस्लिम, वो कितनी जिल्दों में है? वो तकरीबन 8 जिल्दों में है। फिर उसका तकमिला अल्लामा तकी उस्मानी साहब ने किया है। ओहो, फतहुल मुल्हिम। अब देखिए एक बात और सुन लीजिए, शेख उल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इतने पाए के बड़े आलिम है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़ा तहकीकी इदारा है मजमउल फिक़्ह इस्लामी मक्कतुल मुकर्रमा। अच्छा। उसके 10 साल ये अमीर रह चुके हैं। 10 साल तक? 10 साल तक ये अमीर रह चुके हैं। अमीरुल उलमा, यानी अरब किसी को अपने ऊपर फौकियत तरजीह नहीं देते, लेकिन इनको वहाँ अमीरुल उलमा के हैसियत से वहाँ उसके सदर रह चुके हैं। आप सिफारिश करवा के एक बरेलवी आलिम को भी आप अमीर बनवा दो मक्का शरीफ के आलिम। अच्छा, उसके बाद देखिए अल्लामा जाहिदुल कौसरी जो है उनके शागिर्द है अल्लामा अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा। कौसरी तो बहुत बड़े आलिम हैं। सुनिए मेरी बात, तो अल्लामा जाहिदुल कौसरी के शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा। उन्होंने अपने मकाले में लिखा है तकी उस्मानी के बारे में, लव कुन्त तुफ़ाहन लअकलतुका, अगर आप सेब होते तो मैं आपको खा लेता। किसके बारे में कहा? मुफ्ती तकी साहब के बारे में? मुफ्ती तकी उस्मानी के बारे में। अल्लामा जाहिदुल कौसरी के बड़े उनके उलूम के शारिह अमीन अल्लामा अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा, वो दुनिया से जा चुके हैं। वो कहते थे, वो ये कहते थे लव कुन्त तुफ़ाहन लअकलतुका, अगर आप सेब होते तो मैं आपको खा लेता। अल्लाह अकबर, ये आलम है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। जी, तकी उस्मानी शेखुल इस्लाम का लक़ब मिला है साहब। पूरी दुनिया इस्लाम के इतने नामवर आलिम दीन। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर सादगी उनमें बहुत ज्यादा है, शराफत देखिए, ऐसा लगता नहीं कि इतने बड़े आलिम हों एतबार से, लेकिन इल्म बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। उन्होंने आसान तर्जुमा कुरान लिखा है। जी 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 जी, हमारे घर में है जी। तो मैंने उसमें एक बात का उन्होंने ख्याल रखा, जो बरेलवी लोग फितना उठाते हैं ना। देखो थानवी साहब ने सूरह फतह की पहली आयत का ऐसा तर्जुमा किया कि अगले पिछले गुनाह माफ किए। हालांकि उन्होंने खता का तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आपकी अगली पिछली खताएं माफ की। जी जी जी। और उनके वालिद अल्लामा नकीर खान ने, फाजिल भाई के वालिद ने तो लफ्ज गुनाह का तर्जुमा, गुनाह से ही किया तर्जुमा। जी जी जी, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। तफसीर अल-मुशद जिल्द अव्वल सफ़ा 116 पर। जी जी। अल्लामा मुफ्ती तकी उस्मानी ने तर्जुमे में ख्याल रखा इस बात का। उन्होंने तर्जुमा किया कि अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली भूल माफ फरमाई। माशाअल्लाह, कितनी बेहतरीन तर्जुमा, तस्वीर वाला तर्जुमा हो गया है। जी 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 जी। यही असल में एतदाल, इस मसलक में यही चीजें एतदाल और शिकरी जो है, शिकरी एतदाल, इसी वजह से पूरी दुनिया में जो है इनकी मकबूलियत हुई है। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ कासमी लोग जो है खिदमत अंजाम न देते हों। अरे साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि शेखुल इस्लाम के ये कौन थे, शेखुल अरब वल अजम शेख हुसैन अहमद मदनी साहब के शागिर्द भी इतने बड़े बड़े हैं कि उनके शागिर्दों के शागिर्द बहुत बड़े बड़े आलिम हैं साहब, बड़े बड़े आलिम हैं। ये कौन थे आपके? मौलाना शेख नसीर खान साहब शेखुल हदीस दालूम। जी जी, उनका इंतकाल 2010 में हो चुका है। वो उनके ही शागिर्द थे। हम उनके शागिर्द थे। तो वो उनके कम बेश 20 शेखुल हदीस शेख नसीर साहब के साथ 20,000 या 12,000 आलिम शागिर्द थे। जी जी, उनके शागिर्द के शागिर्द 20,000 या 12,000 आलिम, बताओ आप। जी जी। तो कैसे कैसे शागिर्द, सफदर उकाड़वी साहब जिनका आप बता रहे हो, इनके भी न जाने कितने बड़े बड़े आलिम शागिर्द हैं। अरे बड़े बड़े आलिम, बल्कि पाकिस्तान में सबसे बड़े आलिम, ये बड़े जो है लिखने वाले, इनकी तहरीर में बड़ी जाज़बियत और बड़े गहरे आलिम, बड़े मुतबहिर आलिम थे। हाँ, बल्कि पढ़ने के जमाने में ये शेखुल इस्लाम ही के शागिर्द थे। कौन? ये अल्लामा सरफराज खान सफदर, जिनकी किताब है तस्कीनुस सुदूर फी अहवालिल मौता वल बरज़ख़ फ़िल क़ुबूर। पाकिस्तान की जमीयत की तरफ से जो है ये किताब उनके हाथ से लिखवाई गई है। अल्लाह, बड़े मुदल्लल। तो एक मिनट, उनका एक वाक़या ये है कि पढ़ने के ज़माने में देवबंद में एक मरतबा शेखुल इस्लाम ने उनको उठाया फजर की नमाज में। अच्छा। तो दोबारा जो है फिर वो सो गए, तो फिर दोबारा शेखुल इस्लाम उठाने आए तो देखा ही कमबख्त तुम जो है अभी तुम्हें को उठाया फिर तुम सो गए। तो एक मुक्का मारा तो सरफराज साहब ने कहा कि एक और दीजिए, ये मेरे लिए सआदत होगी। अच्छा। ठीक है। तो वो हैं, इनको आगे चल के इमाम अहले सुन्नत बने। और एक नहीं, बिल्कुल उनकी सैकड़ों किताबें हैं सफदर साहब की। जी,
सरफराज खान सफदर साहब की सैकड़ों किताब, अल कलाम अल मुफीद फी इस्बात तकलीद, इनकी बड़ी मारिफतुल आरा किताब है। ये क्या समझे साहब बरेलवी उलमा है, तो इनको तो काफिर कहने का एक तरीका मालूम है, काफिर बनाओ काफिर कहो। इनका ये महबूब मशगला है बरेलवी, यही मशगला है, बिल्कुल यही काफिर बनाओ बात। अरे भाई मैं जैसे आया हैदराबाद बरेलवी बन के, अब आपका नाम क्या है वो देखो, मैं भी ध्यान से भूल गया आपका नाम। जी आपका नाम क्या है? मेरा अब्दुल मतीन है। मैं अब्दुल मतीन, मौलाना अब्दुल मतीन कासमी साहब। मैं बरेलवी बन के आया, मेरा काम यही होगा मशगला कि बताओ इस चारों के बारे में तुम क्या कहते हो। अब आप देखोगे भाई क्या चारों, कौन से चारों क्या? अरे नहीं, वो उन्होंने थानवी साहब ने लिखा है बस यही तरीके, बस इनका यही काम है, जाएंगे तो पूछेंगे तुमने क्या क्या कहते हो, काफिर कहते हो कि नहीं। जी जबरदस्ती काफिर कहलवाते हैं। बताइए। अच्छा, अगर जैसे ये पूछे चारों के बारे में क्या कहते हो, कोई अगर इनसे पलट के पूछे तुम वो उन 8 के बारे में क्या कहते हो, कि कौन से 8? अरे वो 8, एक तो मलिकुल उलमा जो फाजिल भाई के शागिर्द थे, पटना में देवबंदी के पीछे रोजाना जोहर की नमाज पढ़ते थे, मुफ्ती सऊल उस्मानी देवबंदी के पीछे, और बाद में दोहरा लेते थे। ये सफ़ा 125 में मुफ्ती रिफाकत हुसैन साहब के लड़के ने किताब में लिखा है, मुफ्ती महबूब साहब ने सफ़ा 125, किताब का नाम है अहले सुन्नत में इख्तिलाफ व तफरीक के अलमनाक वाक़या। साफ लिखा है कि देवबंदी के पीछे रोजाना जोहर की नमाज पढ़ते थे और बाद में दोहरा लेते थे। वो जफरुद्दीन बिहारी जो फाजिल बरेलवी के खास शागिर्द थे। जी, उनकी सवाल हयात भी लिखी है उन्होंने। हाँ, अगर कोई पूछे तुम 8 के बारे में क्या कहते हो, 1-8 वो एक और शागिर्द सुलेमान साहब भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो अलीगढ़ में देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते थे। अलीगढ़ में तो सब देवबंदी है, यूनिवर्सिटी में टोटल देवबंदी है। अरे उनके बानी जो थे वो खुद देवबंदी थे अलीगढ़ के। क्या नाम था? शेखुल हिंद ही असल में उसके असल बानी हैं। हाँ, वो तो मशवरे के लिए बुलाया था, ये क्या था मामला। जी हाँ, लेकिन काम तो सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का ही है। हाँ, तो वो असल में है वो आपस में वही एक ही मतलब मसलक के लोग थे, एक ही मसलक। हाँ, एक ही मसलक के थे। शायद वो हज़रत सर सैयद साहब तो इस लाइन में आ गए थे, जदीद लाइन के अंदर के जदीद तालीम से लोगों को आरास्ता पिरास्ता किया जाए। जी। लेकिन बहुत बड़ा काम किया था सर सैयद, बहुत बड़ा काम किया वो। मतलब मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के आलिमों ने मिलकर इतना बड़ा काम नहीं किया जितना बड़ा काम अकेले सर सैयद साहब ने कर दिया। जी। मैं जाता रहता हूँ ना, मुझे मालूम हुआ कि 12,500 या 12,000 कर्मचारी, अब उनको 1-1 लाख तनख्वाह मिलना, 50-50 हजार मिलना, ये कितनी बड़ी बात है साहब। 1-1 लाख 50,000 तनख्वाह मिल रही है, और कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल चुके। जी। कितना बड़ा काम किया था। आज उनकी खिदमत को कभी भूला नहीं जाएगा, याद रखिए। अब ये लोग काफिर होने के पत्ते लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, उनसे गलतियां तो उनसे हुई, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कुफ्र नहीं बका जिससे वो खुला कुफ्र, बड़ा कुफ्र, जैसे नमाज का इनकार नहीं किया, न रोजे का, न ज़कात का, न हज का, और अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। बल्कि उन्होंने तो एक किताब लिखी थी हुजूर की मोहब्बत में, जो एक शख्स ने, अंग्रेज ने, किसी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, तो आपने अपने सरमाया बेच के खुतबात अहमदिया लिखी थी। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जो किताब लिखी थी, उसका जवाब दिया था अंग्रेज को, अंग्रेजी में लिख करके। जी। जब ये बरेली वाले और दूसरे लोग कहाँ चले गए थे, जवाब तो उन्होंने ही लिखा था अंग्रेजी। जी। और मुझे तो मालूम हुआ है कि अल्लाह के रसूल के वो आशिक थे। यानी ये मालूम हुआ है कि मुफ्ती फिरंगी महल ने जब उनके पास फतवा गया था कि कुफ्र का फतवे पे आप दस्तखत कर दें, क्योंकि उस बार पावरफुल वही थे फिरंगी महल के आलिम, तो मुफ्ती साहब ने देखा सर सैयद काफिर है, इस पर फतवा दो। तो कहा ऐसे रद्दी की टोकरी में डालो। फिर उन्होंने अपना ऐनी मुशाहिदा बताया। कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना नहीं, कहा कि आंखों से देखा है कि मैं मौजूद था सर सैयद के सामने जब अल्लाह के रसूल का जिक्र मुबारक हो रहा था, तो सर सैयद की आंखों से बराबर आंसू टपक रहे थे। कहा कि ऐसे शख्स को मैं कैसे काफिर कह दूं कि जिसके सामने अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा हो, बराबर आंखों से आंसू जारी हो। अल्लाह। तो वो गलतियां तो हुई हैं, आप तो जानते हैं, आलिमों से, बहुत से आलिमों से गलतियां होती हैं, कुफरिया अल्फाज भी ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन वो अलग कुफ्र की एक अलग किस्म होती है। लेकिन कोई आदमी नमाज से, रोजे से, ज़कात से इनकार करे, कुरान की आयत से इनकार करे, वो एक अलग किस्म का कुफ्र होता है। जैसे वसीम रजवी का कुफ्र अलग कुफ्र है, वो तो खुला कुफ्र है, बड़ा कुफ्र है वसीम रजवी का। जी। तो सर सैयद साहब का ये मामला था कि उनसे गलतियां हो गई थी, और गलतियां तो हजरत हर बड़े बड़े आलिमों से हो ही जाती है, कहीं ना कहीं हो ही जाती है थोड़ी बहुत। गलती होने के मतलब नहीं कि उनको काफिर बनाया जाए।
अब फाजिल बरेलवी का ही देख लो ना, उन्होंने किताब में लिखा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की खबरों में उनकी बीवियां पेश की जाती है, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। फतवा रिज़विया में लिखा हुआ है ना। जी जी। अब ये बचने के लिए क्या कहते हैं कि फाजिल बरेलवी ने इसको कॉपी किया है। मैंने कैसे कॉपी करने की क्या जरूरत थी, नकल करने की क्या जरूरत थी। और नकल जिससे कि अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो तो बहुत पुराने आलिम है, आज से 900 साल पुराने, 1000 साल पहले के। उनसे फिर किसने नकल किया? आज तक किसी और ने तो नकल ही नहीं किया इनके अलावा। आपने भी तो पढ़ी होंगी किताब है, किसी और ने भी नकल किया इस बात को इनके अलावा? जी जी, किसी ने नकल नहीं किया ना इनके अलावा, फाजिल बरेलवी के अलावा। देखिए आला हजरत से बहुत गलतियां हुई, लेकिन ये लोग उसको गलत तावीलात करते हैं। वो तो मानते ही, वो गलती तावील करके उनको सही बता देते हैं, हर बात को उनकी सही बता देते हैं। अच्छा, ये इनका जो है कलीम हनफी का और उनके मुकाबले में कौन है? मिसबाही साहब हैं कोई? नहीं, उनके मुकाबले में इन्हीं की पार्टी के वो शनाबिल रजा हैं, शुमाइल रजा हैं, और ये बुरहान रजा, ज़ुरताब रजा, ये एक ही खानदान में दो फिरके हो गए। यानी खानदान एक ही था, सगे चचाजाद भाई और सगे चचाजाद भतीजे, मतलब भाई भतीजे। तो ये दो फिरकों में बढ़ गए। यानी ये अजाब नहीं है तो और क्या है कि जितना इन्होंने दूसरों को काफिर कहा था मुसलमानों को, उसकी सजा ये मिली कि अब ये चचा भतीजे दो फिरकों में बढ़ गए। एक फिरका बरेली की तरफ है, एक फिरका अलग है बस। तो गोया के मतलब इसमें जो है वो कलीम रिजवी साहब ही का मौक़िफ़ सही लगता है। मुफ्ती कलीम हनफी साहब का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर से तो सही नहीं है। भाई इतना सही है कि वो ढोल बाजा जो है वो नहीं बजना चाहिए, वो तो अपन भी मानते, सब मानते हैं इस बात को, बरेली भी मानते हैं ढोल बाजा न बजे मुहर्रम में। लेकिन उन्होंने जो ताज़िये का लेकर के मैटर उठाया, तो इसमें कुछ फवायदे भी हैं, ताज़िये में कुछ फवायद छुपे हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें फायदा एक ये है कि आप जलसा कर सकते हो, आप जुलूस निकाल सकते हो, आप अखाड़ा खेल सकते हो। जब आप ताज़िये की असली मिटा दोगे तो फिर आप गवर्नमेंट से परमिशन किस बलबूते पे लोगे? अरे ताज़िये का एक नाम बरकरार रहने दो, और उसमें जो गलत बातें उसे आप खत्म करवा के उससे फायदा तो उठाओ ना। गवर्नमेंट जब परमिशन दे रही है पूरे हिंदुस्तान को परमिशन है हजरत, उस दिन जुलूस निकालने की, जलसा करने की, और अखाड़ा निकालने की भी परमिशन है। अब आप अखाड़े ही खत्म करवा दोगे तो फिर ये मुसलमान जो है कि सिपागरी कैसे सीखेंगे साहब, अखाड़ा कैसे सीखेंगे? जी जी जी। इसीलिए हजरत मौलाना थानवी साहब ने इस बात को लेकर कानपुर में मना नहीं किया था, और कहा था कि कम से कम ये अल्लाह की रस्सी को तो थामे हुए हैं ताज़िये वाले लोग। वो हिकमत के तौर पे समझ रहे थे कि इससे कम से कम इस बहाने से ये अल्लाह रसूल का जिक्र तो कर लेते हैं जी। और फाजिल बरेलवी ने भी कहा था कि जुमा जहाँ हो रहा है उसको कायम रहने दिया जाए, जुमे का, यानी गाँव में जहाँ जुमा पढ़ा जा रहा है उसको बंद न किया जाए। कम से कम ये जुमा तो अल्लाह रसूल का नाम तो ले लेते हैं। अगर जुमा तुम खत्म करवा दोगे गाँव से तो फिर ये लोग नमाज पढ़ना ही बंद कर देंगे, जुमा भी नहीं पढ़ेंगे फिर उस दिन जी। फाजिल बरेलवी ने भी लिखा है बात को, कहा कि इमाम शाफई के मसलक पे तो जुमा हो जाएगा गांव के अंदर, अगर इमाम आजम के मसलक पे नहीं होगा तो इमाम शाफई के मसलक पे हो जाएगा जी। तो यही फायदे को सामने रखकर थानवी साहब ने मना नहीं किया था सख्ती के साथ जी जी। अब जो गलत बातें उसे आप रोको, औरतों का आना रोक दो, जो उसमें गलत ढंग रसूमात हो रही है उसे आप रोक दो, कि जो उसके अंदर रखकर न्याज फातिहा पढ़ते हैं उसे समझा दो कि भाई न्याज फातिहा करना है तो आप दूर एक चौकी बिठा दो, उस पर रखकर फातिहा पढ़ लो जी। क्या ख्याल है साहब? जी जी, बात सही बोल रहे हैं। और इसमें क्या है, हिंदुस्तान के लाखों हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं ताज़िये से जी जी। तो ये इससे फायदा है कि कम से कम हिंदू भाई इस बहाने ताज़िये के बहाने मुसलमानों से भी तो करीब है, कम से कम मुसलमानों से उस दिन दुआ सलाम तो कर लेते हैं कि एकता का मामला तो जारी है ना इससे जी जी जी। अब आपने ताज़िया खत्म कर दिया, हिंदू भाई भी पूछेंगे यार ये क्यों बंद कर दिया, अब क्या जवाब देंगे उनको हम क्या जवाब देंगे साहब? अरे कम से कम इस बहाने वो मुसलमानों से दुआ सलाम करने आ जाते हैं, या न्याज फातिहा पढ़वाने के लिए आ जाते हैं, या उसे मानते हैं, तो वो तो उनका तो मानने का तरीका जो भी हो, लेकिन इस बहाने से करीब तो है, इस्लाम के करीब तो है इस बहाने से यानी ताज़िये के करीब है, मतलब ये कि इस्लाम के करीब है इस बहाने। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सही है। अब कलीम हनफी से पूछा जाए तो ताज़िये को हराम बता रहा है, तो जो आज मुसलमान की बहन बेटियां कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रही हैं इसे कब हराम बताएगा?
मतलब जैसे हिंदुस्तान है ये बड़ी मसलहत से काम करना पड़ता है यहाँ पे। मसलहत से काम नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा साहब? है आज मुसलमानों की लड़कियां हर तबके की, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सबकी लड़कियां कॉलेजों में जा रही हैं, और आप जान रहे हैं कॉलेजों में क्या हाल हो रहा है आज के जमाने में। गैर मुस्लिम लोग हमारी बहन बेटियों के पीछे लग गए, प्लानिंग के तहत लग गए। अब कलीम हनफी अगर ये कहता तो हम खुश हो जाते कि साहब मुस्लिम लड़कियों के लिए बापर्दा कॉलेज बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, और ये जो आजकल लोग लड़कियों को भेज रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, इससे लोगों को रोका जाए कि इससे हमारी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं हो पा रही है। तब हम मानते हैं उसकी बात को। आप खाली ताज़िए को लेके बैठ गए। तुम्हें ताज़िए को तुम अगर रुकवा भी दोगे, इसको नाजायज करके बंद करवा दोगे, तो इससे और क्या फायदा होगा? एक ये भी तो होगा कि मुसलमान जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, इस दिन इस बहाने से याद कर लेते हैं, तो वो याद हुसैन का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा इस तरह। फिर उम्मत के अंदर जज्बात कैसे पैदा होंगे? शहादत के जज्बात कैसे पैदा करोगे? तुम क्या सुना के पैदा करोगे? करबला के वाक़ात सुना के ही तो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़ात सुना के ही तो शहादत के जज्बात हम पैदा कर सकते हैं उम्मत के अंदर। क्या ख्याल है साहब? बल्कि उस दिन तो शहदा इस्लाम के नाम से जलसा जुलूस प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उसको वो याद रखा जाए। अच्छा, एक बात ये सुनिए अतहर साहब जी, कि हजरत हुसैन और यजीद के दरमियान, तो आपका क्या इस सिलसिले में मौक़िफ़ नज़रिया? यजीद के बारे में क्या नजरिया आपका? यजीद के बारे में तो ये है कि 3 कौल हैं इमामों के। एक ने काफिर का है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने, इमाम अबू हनीफा ने बीच में रखा है, ना हम काफिर कहेंगे ना मुसलमान। और एक इमाम ने और कुछ है। तो अपन तो ये कहेंगे कि उसको अच्छे अलकाब से याद न किया जाए, उसको बुरे अलकाब से याद किया, मरदूद खबीस कहा जाए उसको बस। ये बात सही है कि हजरत मुजद्दिद अलैहिस्सलामी से लेकर हजरत शाह वलील्लाह, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, फतवा अजीजी, यहाँ तक कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम साहब नानोतवी साहब ने उनको पलीद और फासिक कहा। उनका फिस्क जो है मुत्तफक अलैह है। बल्कि अल्लामा इब्न जौज़ी ने किताब लिखी है अर्रद्द अलल मुतअस्सिबिल अनीद अल मानिअ मिन ज़म्म यजीद। उनकी जो है बड़े बड़े अल्लामा इब्न कसीर ने और जो है दीगर उलमा ने उसकी जो है बाज़ाब्ता उस पर तकरीर भी लिखी है कि पूरी उम्मत की तरफ से कर्जा जो है इब्न जौज़ी ने अदा किया है। बहरहाल इनका फासिक होना मुत्तफक अलैह है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने तकवीर भी की, जैसे इमाम अहमद इब्न हंबल है, और जैसे गजाली वगैरह कहते हैं कि भाई उसमें तवक्कुफ इख्तियार किया जाए कि नहीं। मगर इसमें ताज्जुब की एक मैं बात बताऊं, बहुत बड़े ताज्जुब की। फाजिल बरेलवी देवबंद वालों को तो एक तरह से एकदम काफिर कहते हैं कि ये देवबंदी कुर्रा अर्ज़ पे कोई देवबंदी कुफ्र से खाली नहीं, सबके सब काफिर हैं। एक तरफ लिखते हैं कि कुफ्र में एहतियात किया जाए, 100 पहलू निकलते हैं 99 कुफ्र के, एक इस्लाम का, तो जब तक उसको अभी काफिर न कहा जाए, मुसलमान के नजदीक अच्छा गुमान रखते हुए ताबीर की जाए। एक तरफ ये लिख दिया, एक तरफ दिया जितने भी जमीन पे हैं सबके सब काफिर हैं। ये तजाद हो गया कौल में, तजाद। एक तरफ आपने लिख दिया, एक तरफ आपने लिख दिया है। जी। अब मैं इसमें एक ताज्जुब वाली बात बता रहा हूँ। तुमने देवबंद वालों का ऐसा कौन सा कुफ्र देखा? चलो 4 के बारे में तो तुम्हारा फतवा बताते कि हुसाम अल-अरमैन मारता है, वो ठीक है अपनी जगह, तो तुम जानो। लेकिन अब तुमने उनके मानने वालों को लिख दिया कि जितने भी जमीन में देवबंदी है सबके सब काफिर है। तो फिर यजीद को तुमने काफिर क्यों नहीं कहा? यजीद के बारे में सब तुमने क्यों नरम रवैया अख्तियार किया कि हम उसको काफिर नहीं कहेंगे? वाह, यजीद की खबासत दुनिया में मशहूर है, उसके बारे में तुम कह रहे हो कि काफिर नहीं कहेंगे, और देवबंद वालों को एकदम काफिर कहने लग जाते हो। बल्कि अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा है काना मुतअल्लिहन तकब्बरा, कोई इंतज़ामी मुतकब्बिर और खुदाई दावेदार था वो यजीद के बारे में। काना मुतअल्लिहन तकब्बरा, कोई खुदाई दावेदार और मुतकब्बिर आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वो तो साहब नानोतवी ने किताब लिखी है ना कि फिस्क़ यजीद के सिलसिले में अत-तमहीद फी बयान फिस्क़ यजीद के नाम पे उनका रिसाला है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का। नहीं, वो तो उनका अल बिदाया व निहाया है ही। मौलाना कासिम साहब नानोतवी की का रिसाला है इस सिलसिले में, बानी दारुल उलूम का। अच्छा, तमहीद फी बयान फिस्क़ यजीद उस रिसाले का नाम है। कासिम नाज़ी साहब ने लिखा है यजीद के फिस्क़ के बारे में। हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम देवबंद ने लिखा है। बताओ आप बताओ। वो भी फासिक मानते हैं, फाजिल मानते हैं, वही फाजिल बरेलवी मानते हैं, उतना ही फाजिल बरेलवी मानते हैं जितना कासिम नाज़ी साहब मानते हैं। अब ये लोग कहाँ ले जाते हैं उम्मत को, समझ में नहीं आता, किधर ले जाके छोड़ेंगे उम्मत को। इसीलिए मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि आप मक्का शरीफ मदीना शरीफ के शेखों से ताल्लुक करके
उनसे ये अपील कर दें कि हजरत एक आध नमाज बरेलवी उलमा से भी पढ़वा लें ताकि इनका भी दिल खुश हो जाए। 100 साल से बेचारों की नमाज ही नहीं हो रही, न इनका इमाम आ रहा। 100 साल से नमाज नहीं हो रही साहब इनके फतवे से, 100 साल से। जी 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 जी। अब बताओ 100 साल से मक्के वाले बगैर नमाज के मर रहे हैं, बगैर जनाजे के मर रहे हैं, बगैर निकाह के मर रहे हैं, निकाह भी नहीं हो रहे साहब। जी जी जी। 2 साल से निकाह भी नहीं हो रहा है इनके फतवे से, निकाह भी नहीं हो रहा है वहाँ तो, नहीं हो रहा वहाँ पे। अब वहाँ पर साहबा किराम की औलाद है, उनके भी निकाह नहीं हो रहे इनके फतवे से, जो सैयद हैं उनके भी निकाह नहीं हो रहे जी। अब इनसे पूछा जाए जो सैयद हैं निकाह करते हैं, किन में निकाह करते हैं? क्या बरेली में आके निकाह करते हैं या पीलीभीत में आके निकाह करते हैं? जी जी जी। अरे वहाँ के सैयद वहीं तो निकाह करते हैं ना, वहीं तो शादियाँ करते हैं जी। उन्हीं को तो गवाह बनाते हैं, उन्हीं को तो वो सब के सब इमाम हरम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, वही अकायद हैं जिनको ये लोग मुसलमान नहीं मानते, बरेली लोग। ये लोग जब हज के मौके पर ये लोग नमाज उनके पीछे नहीं पढ़ते ये लोग? अरे ये तो जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, जुमा 7 जुमे छोड़ के आते हैं। ये गोया के मतलब तनहा पढ़ लेते हैं कि देखिए हरम से भी अल्लाह ने इनको जो है महरूम कर दिया, और जन्नत की क्यारी से भी महरूम कर दिया है। जन्नत की क्यारी में वही नमाज पढ़ेगा जो पहले से मौजूद होगा मस्जिद नबवी में। जी जी। अब ये क्या एकदम भाग के आके वहाँ खड़े हो जाएंगे? ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा इनको, मौका ही नहीं मिलेगा इनको। ये जन्नत की क्यारी से भी अल्लाह ने इनको महरूम कर दिया है। अल्लाह। अच्छा दूसरी बात, जन्नत की क्यारी में क्या बदअकीदा इमाम खड़ा हो जाएगा? कैसे खड़ा हो जाएगा? नबी के मुसल्ले पर बदअकीदा इमाम, ये तो महल वाली बात हो गई। और हिंदुस्तान के ये कमेटी वालों को इतना पावर है, आपके हैदराबाद के, बेंगलोर के, बरेली के, नासिक के, पोरबंदर के, अगर इमाम में जरा भी कमी हो गई तो कमेटी वाले हटा देंगे, इतना पावर है। और इतना पावर इन कमेटी वालों को, कोटा की, जयपुर की, के अपने इमाम में गलती पाएंगे तो हटा देंगे, उसको दोबारा मुसल्ले पे चढ़ने नहीं देंगे। और एक तरफ ये ज़बानी दावा करते हैं खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक की हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और उनके पड़पोते ने कहा नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। तो जब ये अशार कह रहे हो तो फिर नबी एक कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना इमाम क्यों नहीं मांगते वहाँ जाके, मक्का मदीना शरीफ में जाके? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। तो जब ये शेख आए तो अपना इमाम मांगो ना, क्या तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती वहाँ पर? जी जी। इसका मतलब है कि इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही साहब। पूरी दुनिया से तकरीबन 40-50 लाख आदमी जमा होते, सबकी नमाज हो जाती, इनकी नहीं होती है। इनकी नमाज क्या मालूम कहाँ होगी, समंदर में होगी या पहाड़ पे होगी या तूर पे होगी, क्या मालूम कहाँ इनकी नमाज होगी। गोया के मसलक में इस कदर जो है तशद्दुद है। अरे साहब इनकी नमाज तो इन लोगों के पीछे भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, हजरत अल्लामा सैयद ताहिरुल काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीछे भी इनकी नमाज नहीं होगी। वो तो बरेली देवबंदी नहीं है ना। हाँ जी जी। उनके पीछे भी इनकी नमाज कहाँ से हो जाएगी? और अमीर ये इलियास काजी, इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, इसके पीछे भी नहीं होगी। और इसने अपना मिलाद नामा पढ़वाया, लब्बे की अत्तार के नारे लगवाए, मरहबा लब्बे, वो इलियास की आमद मरहबा कहलवाया। इनकी नमाज तो इनके पीछे भी नहीं होगी। बरेलियों में बहुत सारे फिरके हैं हजरत, मैं बताऊं कुछ फिरकों के नाम बताऊं? एक अशरफी अलग हो गया, रजवी अलग हो गया, मदारी अलग हो गया, वारसी अलग हो गया, अबुल उलाई अलग हो गया, चिश्ती अजमेर शरीफ वाले वो अलग हो गए 6, और ये मिसबाही अलग हो गए 7, और ये सैयद सरावा इलाहाबाद में एक मदरसा है, पीर अब्बू मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत काबिल आदमी है वो, उनका वो मदरसे वाला अलग हो गया। और जो है कि ये अशहरी नागपुर से अलग हो गया, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर करार दिया था मुहद्दिस कबीर ने, ये अलग। और एक और है नसीमी, उड़ीसा में चलता, उनको भी काफिर करार दे दिया मुहद्दिस कबीर ने। मुफ्ती मुतीर रहमान ने जाके, एक बरेलवी ने जाके मुसलमान करार दे दिया, एक काफिर करार दे दिया, नसीमी अलग हो गया 10। और साहब 10 तो ये बताई दी मैंने, एक ये अत्तारी अलग हो गया दाऊद इस्लामी वाला, एक सुन्नी दाऊद इस्लामी वाला अलग हो गया, 12 फिरके हो गए साहब। अच्छा 12 में से मुअतदिल आपस में जो है एतदाल पर कौन फिरका है? अल्लामा ताहिरुल काजी वाला। अच्छा, अल्लामा हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल्लामा पीर करमचंद चौधरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े आलिम थे, मुअतदिल आलिम थे, लेकिन इनको भी बरेलियों ने काफिर करार दे दिया। जी 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 जी। ये किसी को नहीं छोड़ते। और ये अभी कारी जहीर साहब जो बम्बई के बहुत बड़े आलिम है, मुफस्सिर आज़म हिंद है, यानी बरेली तबके के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, हजरत अल्लामा कारी जहीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी गुमराह करार दे दिया कि देवबंदियों के साथ बैठता है गुमराह है, इसके पीछे भी नमाज नहीं होगी। तो फिर किसके पीछे होगी? क्या तेरे पीछे नमाज होगी? क्या पीलीभीत के ढोल बाजे बजाने वालों के पीछे नमाज होगी? जो फिरका ढोल बाजा है पीलीभीत वाले, ये पीलीभीत वाले फिरका ढोल बाजा है साहब।
जी जी बताइए। इनके पीछे कहाँ से नमाज हो जाएगी मर्दूदों के पीछे? इनके दादा तो खुद वो कलीम हनफी साहब बता रहे हैं कि देवबंदी से पढ़ के गए थे, देवबंदी के शागिर्द थे। तो शागिर्द देवबंदी के बन रहा हो, बाद में बरेलवी बन रहा हो, ये तकियाबाजी करके तुम कुछ भी कर लो, जाके जामे अजहर में पढ़ो, मैं जाके देवबंदी बन जाओ जामे अजहर में जाके, यहाँ के कट्टर सुन्नी बन जाओ, जामे अजहर में सब देवबंदियों के तरफ पे लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। वहाँ पर पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते, अगोसल मदद नहीं कहते जामे अजहर वाले, यहाँ के वो उन्हें सुन्नी बना देते हैं ये लोग, बरेलवी लोग। ये तकियाबाज हैं साहब, बरेलवी भी बहुत तकियाबाज। मैं इंशाल्लाह डलवा दूंगा इस क्लिप को, फिर बाद में बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है साहब? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।